Hello students, welcome to SST class. So today we'll revise the chapters that we have studied, and this is the second part of what we are revising. We have revised history and now we'll revise geography for periodic test first. In this test, two chapters are coming. These are globe, latitudes and longitudes and motions of the earth. So first of all we'll discuss the revision. We'll do revision of these chapters with the help of MCQ की हेल्प से हम इसको रिवाइज करेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्लोब. ग्लोब क्या है? सो वी नो दैट ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ. True model of earth is called globe. Answer B is correct. True model of earth is globe. Next question is question number 2. Which of the following are shown on the globe in their true size? True size we can say जो उनका relative size है, यहाँ होना चाहिए था relative size. जो relative true size है वो globe जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी जो ऑब्जेक्ट हैं उनको दिखाता है. तो वो कौन कौन से हैं? कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स या ओशियंस. दीज आर ऑल ऑफ दीज, बिकॉज इन द ग्लोब वी कैन सी ऑल दीज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन देयर रिलेटिव ट्रू साइज. ओके, जो भी उस पर साइज होता है, जो उसमें बड़ा है वो बड़ा होगा, जो उसमें छोटा है वो छोटा होगा. सो द साइज गिवन इन द ग्लोब proportion के हिसाब से that is true. So answer of this question is all of these. Next question is question number 3. What is called a needle fixed through the globe in a tilted manner? You have seen the globe. आपने ग्लोब देखा है. ग्लोब में एक बीच में निडल पड़ी होती है जिसके चारों ओर वो घूमता है, रिवॉल्व करता है. So What is this needle is called? This needle is called axis. Axis के चारों ओर ये ग्लोब घूमता है. वो उसके बीच में फंसी होती है और ये उसके चारों तरफ घूमता रहता है. तो so this is called axis. Okay. Next question is question number 4. What divide the earth into two equal parts? अर्थ को दो बराबर इक्वल पार्ट्स में कौन सी लाइन डिवाइड करती है? द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर. ये हेमिस्फीयर थोड़ा सा कट गया है, ये हेमिस्फीयर है यहाँ. सो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर. सो विच ऑफ द लाइन डिवाइड्स अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न? दिस इज इक्वेटर. इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. You can see that this is earth for example, and जो इक्वेटर होती है वो अर्थ को बिल्कुल बीच में से डिवाइड करती है. You can see that the line that divides the earth. So this portion is called northern hemisphere and this portion is southern hemisphere. So equator divides the earth into northern hemisphere and southern hemisphere. So this is the answer of this question, and now we will move to next question. Question number 5. Name one of the following parallels of latitudes as Tropic of Cancer. Tropic of Cancer का latitude क्या है? Tropic of Cancer, we know that latitude of Tropic of Cancer is 23 degree and 30 minute north. Okay, साउथ में नहीं है, ये नॉर्थ में है. सो आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ. आई विल शो यू दैट दिस इज अवर अर्थ. फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं. Okay, this is Earth, and we have discussed that this is equator
and there is a line here, and there is a line here. So this line is called Tropic of Cancer, and latitude of this is 23 degree and 30 minute north, and latitude of this line is here. This is 23 degree and 30 minutes south. This is Tropic of Capricorn, and this is Tropic of Cancer. Okay, so we will move to next question. Question number 6. Between which parallels of latitude is the torrid zone situated? टॉरिड जोन की लोकेशन क्या है? टॉरिड जोन किन लेटीट्यूड्स के बीच में स्थित है? सो टॉरिड जोन इज लोकेटेड between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, as we have discussed earlier कि Tropic of Cancer ये नॉर्थ में होता है, Tropic of Capricorn ये इक्वेटर के साउथ में होता है. तो द एरिया बिटवीन द Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is called torrid zone. ये एरिया ऐसा होता है जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट पूरी साल भर रहती है, और इस वजह से यहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है. दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, टॉरिड जोन. Okay, so answer of this question is option A. Next question is question number 7. Which of the following zone is situated between 66 degree 30 minutes south and poles? कौन सा एरिया जो कि 66 डिग्री 30 मिनट साउथ और पोल्स के बीच में स्थित होता है? इस जोन को क्या कहेंगे? दिस जोन विल बी कॉल्ड फ्रिगेट जोन. दिस जोन इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ही ठंडा होता है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन होती है, देखो आपको दिखाते हैं, जो इसकी लोकेशन होती है वो ये होती है. दिस इज अर्थ, दिस इज इक्वेटर, ओके, एंड दिस इज सपोज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड हियर दिस इज 66 डिग्री एंड 30 मिनट लेटीट्यूड ये है, एंड हियर दीज आर पोल्स. So the area between the 66 degree and 30 minute south or north and the poles is called frigate zone. ये area, I'll highlight this area, okay, and this area on both the sides. This will be called frigate zone. This area is very cold. Okay, so answer of this question is option C. And now we will move to next question, question number 8. Which of the following is called the prime meridian? Prime meridian किस longitude को कहा जाता है? Prime meridian ये longitude होता है, and ये जितने भी दिए गए हैं नॉर्थ एंड साउथ, ये दोनों ये लेटीट्यूड्स हैं. जो लॉन्जिट्यूड्स होता है ये ईस्ट या वेस्ट में होता है, और जो लेटीट्यूड्स होते हैं ये नॉर्थ या साउथ में होते हैं. सो दीज टू आर लेटीट्यूड्स एंड दीज टू आर लॉन्जिट्यूड्स, एंड द लोकेशन ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड. आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ओके, सपोज दिस इज अर्थ. लॉन्जिट्यूड क्या होता है? लॉन्जिट्यूड जो होते हैं ये नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में चले जाते हैं. दीज आर इमेजिनरी लाइंस. जो लेटीट्यूड्स होते हैं दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड लॉन्जिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइंस लाइक दिस. यू कैन सी, ओ सॉरी, ये हाँ, लाइक यहाँ से निकलेंगे और यहाँ जाएंगे. ओके, इस तरीके से ये एक पोल से निकलते हैं दूसरे पोल में चले जाते हैं. दीज लाइन्स, दीज इमेजिनरी लाइन्स आर कॉल्ड लॉन्जिट्यूड्स. ओके, लाइक दिस. एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. So answer of this question is
ऑप्शन डी 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज What divides the Earth into the eastern and western hemisphere? अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन सी लाइन डिवाइड करती है? As we have discussed earlier that the prime meridian divides the Earth into eastern and western because it is in the middle. So answer of this question is prime meridian. दोबारा से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया है. So now we will move to next question. Question number 10. In which ocean are Tonga Islands situated? Tonga Island किस ओशियन में स्थित हैं? Tonga Islands are situated in Pacific Ocean. Answer is C, Pacific Ocean. Next question is on which parallel of latitude is Mauritius located? Mauritius कौन से latitude पे located है? Mauritius is located in 20 degree south. आंसर इज 20 डिग्री साउथ. तो ये बेसिकली याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट टाइम डज अर्थ टेक रोटेटिंग फ्रॉम 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड टू नेक्स्ट लॉन्जिट्यूड? अर्थ को कितना समय लगता है 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड को पार करने में? ओके, सो अर्थ टेक about 4 minutes to move 1 degree longitude. Answer of this question is 4 minutes. Okay. Question number 14 is what is the time difference between the time of Dwarka in Gujarat and time of Dibrugarh in Assam? द्वारका जो कि गुजरात में है और डिब्रूगढ़ जो असम में है, इनके बीच में टाइम डिफरेंस क्या है? Our country India is very big, so due to the east-west extension of India, there is a time lag between the two extreme east and west parts of India. So the time lag is 1 hour and 45 minutes. Okay, so option C is correct. Next question is question 15. The local time of 82 degree, यहाँ पे ये डिग्री है 82, you can write here 82 degree and 30 minute east. Okay, this is so the local time of 82 degree and 30 minute east longitude is taken as a standard throughout India. It is known as ये जो longitude है, इस longitude को इंडिया में standard time माना जाता है. So this is called Indian Standard Time. Option of this question is Indian Standard Time, option B. Okay. Now we will move to next question. Question number 16. The time of India is ahead of that of England by 5 hour and 30 minute. इंडिया का टाइम इंग्लैंड के टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है. ओके, सो दिस इज द चैप्टर that we have discussed in multiple choice questions format, and now we will discuss next chapter, motions of the earth. अब इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे. In this question number 1 is, so question number first is motion of the earth on its axis in about 24 hours is called. अर्थ अपनी एक्सिस पे 24 आवर्स में जो चक्कर लगाती है, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ अर्थ. अर्थ रोटेट करती है, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेती है 24 आवर में. सो दिस इज कॉल्ड रोटेशन. क्वेश्चन नंबर 2 इज मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड. अर्थ जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ऑल अराउंड द सन, दिस मोशन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. दिस इज रिवोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है. यू सिंपली नोज दैट अर्थ
अगर अपनी एक्सिस पे मूव करेगी, अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगी, दिस विल बी कॉल्ड रोटेशन। और अगर सन के चारों ओर ये रिवॉल्व करेगी, दिस विल बी कॉल्ड रिवोल्यूशन। ओके, सो दीज आर टू मोशंस। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? ऑर्बिटल प्लेन इज द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट। ऑर्बिट की वजह से जो प्लेन बनता है, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन। सो आंसर इज बी, प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। अर्थ पे जो भी लाइट आती है उसका सोर्स क्या है? वी नो दैट दिस इज सन, सो आंसर इज द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, द सर्कल दैट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू डे एंड नाइट। वो सर्कल जो अर्थ को इस तरीके से डिवाइड करता है कि जिसके हाफ पोर्शन में नाइट होती है एंड हाफ पोर्शन में डे होता है, दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, आंसर सी, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 6 इज द पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ अर्थ इज नोन एज। अर्थ का एक रोटेशन उसको क्या कहते हैं? द संडे, मून डे और अर्थ डे, दिस इज कॉल्ड द अर्थ डे। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होगा यदि अर्थ रोटेट ही ना करे? तो जहाँ पे जो भी पोर्शन सन के सामने है वहाँ पे हीट बनी रहेगी, वहाँ पे काफ़ी वार्म कंडीशन होगी, और जो भी दूसरी साइड में होगा वहाँ पे हमेशा कोल्ड बनी रहेगी। यानी कोल्ड कंडीशन रहेगी अर्थ की हाफ पोर्शन पे, और हाफ पोर्शन पे वार्म कंडीशन रहेगी। और इस कंडीशन में अर्थ पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी। सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, ये सभी होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड। किस ईयर में 366 डेज होते हैं? दिस इज लीप ईयर। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। इसमें एक डे एक्स्ट्रा होता है बिकॉज देयर आर 365 डेज, और लीप ईयर में एक डे बढ़ जाता है, इस वजह से 366 डेज हो जाते हैं। सो आंसर इज लीप ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, वाई डू सीजन्स चेंज ऑन अर्थ। अर्थ पे सीजन क्यों चेंज होते हैं? ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, और ड्यू टू नो चेंज इन द अर्थ पोजिशन। सीजन्स अर्थ पे चेंज होते हैं ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इसी वजह से ये सीजन चेंज होते हैं। सो आंसर इज ए, जब अर्थ की पोजीशन इन कंपैरिजन टू सी जब सन जब चेंज होती है तब अर्थ पे सीजन्स चेंज होते हैं, बिकॉज अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है और उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, जिस वजह से सीजन अर्थ पे चेंज होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हेन डू द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? दिस इज द कंडीशन व्हेन जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दिस इज जून 21। जून 21 को जो सन होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हैं, और इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और ठीक इसका जस्ट उल्टा साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है इस दिन, वहाँ पे सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है, जब यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जून 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज इन विच सीजन क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है? वी नो दैट 25 December is celebrated as Christmas, but it is in northern hemisphere. In southern hemisphere like Australia it is celebrated in summer, क्योंकि जब यहाँ पे ठंड होती है उस समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, समर होती है। सो दिस इज सेलिब्रेटेड इन समर सीजन। क्वेश्चन नंबर
12 is when do equinoxes occur on the earth? अर्थ पे equinox कब होते हैं? So first of all we will understand this term equinox. What is equinox? Equinox क्या होता है? तो सबसे पहले for example this is earth and this is equator. Equator divides the earth into two equal halves, northern हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. तो क्या होता है जब सन से जो सनलाइट पड़ती हैं, जो सनलाइट आती हैं, ओके, फॉर एग्जांपल दीज आर सनलाइट दैट आर कमिंग फ्रॉम द सन. जब ये सनलाइट अर्थ के इक्वेटर पे बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. एंड ऐसा साल में 2 बार होता है जब ये सनलाइट इस पे इक्वेटर पे डायरेक्ट बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल भी टिल्टेड नहीं होती हैं, तिरछी नहीं होती हैं. ओके, सो दीज आर March 21st and September 23. These are two days when equinox occur on earth. Okay, so option C is correct. Now we will move to question number 13. Days and nights occur on earth due to अर्थ पे दिन और रात किस वजह से होते हैं? व्हाट इज द रीजन? दिन और रात होते हैं ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ. अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं करेगी तो अर्थ पे नाइट और डे नहीं होंगे. जहाँ पे डे है वहाँ पे डे ही बना रहेगा और जहाँ पे नाइट है वहाँ नाइट ही बनी रहेगी. ओके, सो डे एंड नाइट्स अकर ऑन अर्थ ड्यू टू रोटेशन. आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. चेंज ऑफ सीजन्स अकर ऑन अर्थ ड्यू टू. अर्थ पे सीजन्स चेंज होते हैं किस वजह से? व्हाट इज द रीजन? द रीजन ऑफ दिस इज रेवोल्यूशन. जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तब उसकी पोजीशन सन के कंपैरिजन में, सन के रिलेटिव में चेंज होती रहती है, जिस वजह से अर्थ पे सीजन्स चेंज होते हैं. सो आंसर बी रेवोल्यूशन. सो वी हैव रिवाइज्ड द जियोग्राफी. दिस इज फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन एंड नाउ वी विल रिवाइज civics. Okay.